آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ اس وظیفے کو ہفتے میں صرف ایک دن کرنا، یا پھر آپ بہت زیادہ تنگ دست ہو تو صرف ہفتے میں 2 دن کرنا، کیونکہ اگر اس وظیفے کو آپ لوگوں نے روزانہ کرنا شروع کر دیا تو آپ پر اتنا رزق برسے گا، اتنی روزی روزگار میں برکت ہوگی کہ بہت حد تک کے امکان ہے کہ آپ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ انسان کے بعد جب پیسہ آتا ہے تو وہ پھر اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لو، صرف جمعرات کے دن کر لو یا جمعے کے دن کر لو، لیکن صرف ایک دن کر لو تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ایک بہترین فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو روزانہ کرو گے تو یقین جانو آپ کو خسارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلے آخرت بنائی جاتی ہے اور اللہ بعد میں آپ کی دنیا بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وظیفے کی یہ تاثیر ہے کہ پہلے آپ کی دنیا بنے گی اور بعد میں آپ کی آخرت بنے گی۔ تو لہٰذا کہیں آپ لوگ تکبر نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے اگر 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس 5 منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانو یا نہ مانو، آج وہ اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو تو دولت کے اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے نظارے دیکھنے ہیں تو یہ 5 منٹ کا وظیفہ میرے کہنے کے مطابق کر لیں، لیکن اس وظیفے کو بار بار نہیں کریے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پر مال و دولت کی بارش ہو جاتی ہے تو ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ جب مجھ پر دولت کی بارش ہو جائے گی، جب اللہ پاک کی نعمتیں مجھ پر برسنے لگیں گی تو میں تکبر نہیں کروں گا، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو روزانہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہفتے میں صرف ایک بار کریں، تاکہ آپ لوگوں کے روزی روزگار میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ کیونکہ یہ وہ طوفانی عمل ہے، یہ وہ طوفانی وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا بال بال قرض میں ڈوب گیا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے عین مطابق کر لیں، یقین جانیں آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا روپیہ ملے گا کہ اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی محتاجگی سے بچا سکتا ہے، مخلوق کی محتاجی سے بچا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس وظیفے کو ہفتے میں صرف ایک بار کر لینا، زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ پیارے دوستوں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو، ہم نے بہت سارے بندوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ پہلے آپ کی دنیا بننا شروع ہوتی ہے اور بعد میں آپ لوگوں کی آخرت بننا شروع ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے آپ کی آخرت بننا شروع ہوتی ہے اور بعد میں آپ کی دنیا بننا شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ وظیفے جو ہوتے ہیں وہ 41 دن تک آپ لوگوں نے روزانہ کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے اندر یہی خاص بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ہفتے میں صرف ایک بار کرنا ہے، یا بہت زیادہ ہوا یا پیسوں کی بہت وقت ضرورت ہے تو 2 بار کر لیں، اس سے زیادہ مت کریے گا۔ کیونکہ یہ وظیفہ اتنا کرامتی، اتنا معجزاتی عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے اوپر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے عین مطابق کر لیں، یقین جانیں آپ کا گھر اپنا ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ
के पास गाड़ी नहीं है और आपकी जो बेगम है या आपकी जो बेटे हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि आपके पास गाड़ी आ जाए, तो आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को आप लोग एक बार करके जरूर आजमा लें, ताकि आप लोगों को खुद समझ आ सके कि आप लोगों के ऊपर किस तरह से दौलत की बरसात हो रही है। क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब और बाकमाल अमल है कि जब आप लोग इस वजीफे को एक बार करना शुरू करेंगे तो यकीन जाने आप लोगों की जो तकदीर है वो संवरती जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को इस वजीफे की खास इजाजत चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफे की खास इजाजत मिले, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, हल्की सी भी स्किप नहीं करनी, एक सेकंड भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और उसके बाद आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर अपना नाम लिख दें, या फिर अल्लाह पाक के कोई से 2 सिफाती नाम लिख दें, आपको इजाजत मिल जाएगी। अगर आप लोग अपना नाम लिखते हैं तो आपके नाम के साथ आपके लिए दुआ भी की जाएगी। अगर आप लोग अल्लाह का नाम लिखते हैं तो वैसे ही वो आपको सवाब मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब वजीफे की तरफ चलते हैं कि वजीफा आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार पढ़ लें। इसी तरीके से दोबारा पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 बार हो गया। इसी तरह से तीसरी बार भी पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 3 बार हो गया। 3 बार आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीहा को मिलाकर पढ़ना है जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। मैं आपको 12 वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जिसको हम लोग नमाज में पढ़ते हैं और इसकी फजीलत यही तक सिर्फ काफ़ी है कि आप लोग इसको नमाज में पढ़ते हैं, और नमाज पढ़े बगैर, नमाज में ये दुरूद पढ़े बगैर आपकी नमाज पूरी होती ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले 3 बार ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक की ज़ाते पाक पे 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया और 1 बार सवाब की नियत से अदब के साथ मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पूरा अमल आपको एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं, 1 मिनट के लिए आपको तमाम चीज़ों से, मोबाइल से, दोस्तों से, घर वालों से आप लोगों ने 5-10 मिनट के लिए किनारा कर लेना है और अपनी जिंदगी के ये 5 मिनट अल्लाह की राह में अल्लाह को राजी करने के लिए निकालने हैं, और आप लोगों की जो तवज्जो हो वो अल्लाह पाक की रहमतों की तरफ हो, कि अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो रही हैं, और आप लोगों ने इस अमल को जो करना है वो करना नेक नियति के साथ है, यानी कि आपकी जो नेक हाजात है आपने उसके मुताबिक ही करना है। कोई नाजायज काम के लिए मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को भी देखा है कि किसी की जायदाद हड़पने के लिए वजीफा करते हैं, किसी की जेब में पैसा है वो उसकी जेब से निकलकर आपकी जेब में आ जाए, आप लोग उस नियत को सोच के वजीफा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से अमल करेंगे तो ऐसे आप लोगों को फायदा होगा, आप खुद सोचें। तो लिहाजा आप लोगों ने जायज, जो आपकी जायज हाजत होगी, जो आपके नेक मकासद होंगे, उसकी तकमील के लिए ही आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। अगर आपके कारोबार ठप पड़े हैं, आप इस अमल को करें और आप फिर देखें कि आपके कारोबार में किस कदर तरक्कियां होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है जरा आप लोग ध्यान से मुलाहिजा कर लें। 3 बार ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी भी 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 1 बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर फौरन पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वजीफा पढ़ना शुरू कर देंगे। ये वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहले नंबर पे आप लोगों ने पढ़ना है और सिर्फ 11 मरतबा ये वजीफा सबसे पहले आपको पढ़ना है। जब इस वजीफे को आप लोग सबसे पहले पढ़ लें तो दूसरे वजीफे की जानिब चलते हैं। दूसरा वजीफा भी बड़ा मुजर्रब है। आज का जो अमल है इसमें सेकंड नंबर पर ये वजीफा आपको पढ़ना है। इस वजीफे के लिए अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। आपकी स्क्रीन पर जो आप वजीफा देख रहे हैं, एक बार पढ़ें या अरहमर राहिमीन, फिर दूसरी बार पढ़ें या अरहमर राहिमीन। ये वजीफा आपको 7 मरतबा पढ़ना है। मैं बार बार पढ़ के इसके लिए बताता हूँ अजीज साथियों, भाइयों, बहनों, कि कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। आप लोग तो वीडियो को देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सा अमल करना है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता, जो बेचारे बिल्कुल नहीं समझ सकते, उनके लिए हम लोग तरीक़ेकार को एक अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने जब या अरहमर राहिमीन का वजीफा 7 मरतबा पढ़ लिया, जो वजीफा जितनी तादाद में आपको बता रहा हूँ बराए करम उसी तादाद में पढ़िएगा, कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। आखिरी वजीफे की जानिब चलते हैं। आप लोगों को इस दुआ को आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है, और पढ़ना किस तरह है और आखिर में करना क्या है ये आखिरी तक समझिएगा और देखते रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अमल को पूरी अच्छी तरीके से समझिएगा और अपने ज़हनों में बिठा लीजिएगा कि आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से है। तो तीसरे नंबर पर आप लोग क्या पढ़ेंगे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर देना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस वजीफे को फिर तीसरी बार भी पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस दुआ को आपने आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है। इस दुआ को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो प्यारे दोस्तों, आज का वजीफा यहीं तक था। उसके बाद आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपका अमल हो गया मुकम्मल। ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब है। अब आप लोगों ने दुआ किस तरीके से मांगनी है? सबसे जो बेहतरीन चीज है, जो खूबसूरत चीज है, वो दुआ है। क्योंकि आप लोगों से अगर वजीफा करने में कोई गलती हो गई, कोई लर्जिश हो गई, कोई अल्फाज का जबर जेर आगे पीछे हो गया, कोई बोलने में कलमा चप गया या दब गया, आपके पढ़ने में फर्क आ गया, तो आप लोग दुआ के जरिए अपने इस वजीफे को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो नाकामयाबी वजीफे में होती है, उसकी सबसे मेन वजह यही होती है कि आप लोग वजीफा तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दुआ आप लोग सही तरीके से नहीं करते। आप लोग दुआ को अंदर अच्छी तरह से दुआ नहीं मांगते जिस तरीके से मांगने का हक होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने दुआ भी एक अच्छे अंदाज में मांगनी है, अच्छे तरीके से मांगनी है। सबसे पहले आप लोग जो दुआ मांगेंगे, आप पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा पढ़ लें एक बार, या कोई और सी आप लोग सूरत पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने अल्लाह की तारीफ से दुआ मांगना शुरू करना है। ये दुआ मांगने का एक अच्छा तरीका है। और हर अपनी हाजत पे एक बार कहें, या अरहमर राहिमीन, मेरी फला हाजत है पूरी फरमा दे, या अरहमर राहिमीन, मेरे साथ ये मसला है, इसको हल फरमा दे। यानी कि एक बार कहेंगे या अरहमर राहिमीन, उसके बाद जो आपकी हाजत है आप उसको एक बार कहेंगे, फिर आप कहेंगे या अरहमर राहिमीन, फिर दूसरी हाजत अपनी कहेंगे, फिर आप कहेंगे एक बार या अरहमर राहिमीन, फिर आप तीसरी हाजत कहेंगे। ये दुआ मांगने का सबसे खूबसूरत और सबसे आसान तरीका है। यकीन जाने, इस तरीके से आप दुआ मांग के देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।